Good morning, class. Today we are going to start our second unit. Is matter around us pure? In the previous unit, we have studied about matter in our surrounding having different physical state: solid, liquid, gas, plasma, or Bose-Einstein condensate. Now, the first chapter we have discussed the physical classification of matter. In this chapter we will discuss about the chemical classification of matter. Suppose we have different things around us such as milk, ghee, butter, common salt, oil, etc. So how can we check whether these things are pure or impure? Simply, for a common person, these things are pure if देयर इज़ नो अडल्ट्रेशन इन दैम. अगर इन फूड सब्सटेंसेस के अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है, अडल्ट्रेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ सम चीपर सब्सटेंसेस टू डिग्रेड देयर क्वालिटी फॉर देयर ओन बेनिफिट, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेशन. अगर सब्सटेंस प्योर है कॉमन पर्सन के लिए, प्योर का मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है. इफ़ देयर इज़ नो अडल्ट्रेशन, इन दैट केस दीज सब्सटेंसेस आर प्योर. Suppose we have taken example of garam masala. Okay, suppose we have taken example of garam masala. Now what is garam masala? This garam masala is a mixture of various constituents. इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे. देयरफॉर दिस गरम मसाला इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय mixing of or obtained by taking of a single substance, while it is obtained by mixing of various other constituents in different proportion. ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को मिक्स कर दिया है. तो मिक्सचर जो होता है, इट मीन्स इन दैट केस इट विल एक्ट एज अ इम्प्योर सब्सटेंस. तो उस केस में सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? इम्प्योर. अगर कोई सब्सटेंस इम्प्योर है, इट मीन्स दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट. तो ये जो हमने डेफिनेशन दी है इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस की, दिस इम्प्योर सब्सटेंस इज टेकन और इज कंसिडर्ड एज इम्प्योर अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक टर्म. ठीक है, तो साइंटिफिक टर्म में सब्सटेंस प्योर और इम्प्योर क्या होगा? प्योर सब्सटेंस वो होगा साइंटिफिक टर्म में विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली सिंगल कंपोनेंट, जो सिर्फ एक ही कंपोनेंट से फॉर्म होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस. If it is formed by mixing of various component, then that substance is called as impure substance. So on this basis, matter is classified into two categories. First is named as pure substance and second is called as mixture, also named as impure substance. Clear? So how can we differentiate between these two terms? What is pure substance? A pure substance is that material which contains only one kind of atoms or molecules. जिस सब्सटेंस के अंदर एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो या एक ही टाइप के मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस. सो डिपेंडिंग ऑन दिस, these pure substance can be further classified into elements or compounds. Elements and compounds are also categories of pure substance. Therefore, these two are also considered as a pure substance. Now, what are elements? Elements are pure substance. Elements are the pure substance which is made up of only one kind of atoms. विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. उस टाइप के प्योर सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे? एलिमेंट. सो व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड इज़ दैट प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज़ आल्सो प्योर सब्सटेंस बट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ molecule. What is the difference between elements and compounds? Element is made by combination of or obtained by only one kind of atoms, whereas compound is formed by combination of one kind of molecule. atoms और molecules में बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये पॉइंट चैप्टर फर्स्ट में हम कर चुके हैं. दोबारा से बताती हूँ. एटम वो सब्सटेंस होता है या वो पार्टिकल है विच इज़ indivisible in nature. Smallest particle
indivisible and cannot exist freely, whereas molecule is also smallest particle formed by combination of atom and it can exist freely. डिफरेंस एग्जिस्टेंस का है, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, वेयर मोलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली. क्लियर? सो दीज टू स्पेसेस आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर. एग्जाम्पल एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एटसेट्रा, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एटॉमिक फॉर्म में वो सारे क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस. या फिर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, जैसे वाटर ले लिया, अल्कोहल लिया है, कार्बन डाइसल्फाइड लिया है, शुगर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, नेफ्थलीन लिया है, तो ये सारे प्योर सब्सटेंस है जो फॉर्म हुए हैं बाय कम्बिनेशन ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? एलिमेंट्स में एग्जांपल आ जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा. कंपाउंड में एग्जांपल्स आ जाएंगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, शुगर मीन्स C6H12O6. ठीक है? या फिर C12H22O11. दिस इज कॉल्ड एज केन शुगर. दिस इज सिंपल शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज. अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये स्पेसेस जो फॉर्म हुए हैं दीज आर फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. तो दोनों कैटेगरी को हम प्योर सब्सटेंस के अंडर ही कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, अगर वाटर प्योर सब्सटेंस है तो इट मीन्स, अगर हमने कंसिडर किया वाटर, अगर हम वाटर को मानते हैं प्योर सब्सटेंस, तो क्या पॉइंट है प्योर सब्सटेंस का? अगर हमारे पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उसका नेचर कैसा होगा? दैट इज़ यूनिफॉर्म इन नेचर एंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन. जो कंपोजिशन है कि वो यूनिफॉर्म होगी और उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब विच शोज़ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर या पूरा का पूरा नेचर जिसका कैसा होगा? सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा. ठीक है? बिकॉज नेचर सेम क्यों रहेगा? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. जो भी पार्टिकल्स है इसमें सेम टाइप के हैं, इसलिए इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म या होमोजीनियस मीन्स सेम रहेगा. सो सच टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस और द पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. किसी भी फिजिकल मेथड को फिजिकल सेपरेशन मेथड को यूज़ करके इनके पार्टिकल्स को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट और द पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द सिंपलर पार्टिकल्स बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस. एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. वाटर कैसा सब्सटेंस है? सपोज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड इट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. और जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे? इट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. क्या होंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट? बिकॉज इट हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर इसको सेपरेट करना है तो हम सिंपली इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसको हमें केमिकल मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे, तब हम वाटर से उसके कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं. तो सिंपल फिजिकल मेथड से इसका सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट है प्योर सब्सटेंस में NaCl. NaCl इज़ केमिकली नेम्ड एज सोडियम क्लोराइड. कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज कॉमन साल्ट. जो हम टेबल साल्ट घर में यूज़ करते हैं एडिबल फॉर्म में, तो वो कॉमन साल्ट है. केमिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCl. केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड. सपोज ये सब्सटेंस भी कैसा है? प्योर सब्सटेंस है. लेकिन इस केस में यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो ना तो एटम की फॉर्म में होंगे और ना ही मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे. इन दिस केस द पार्टिकल्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ आयंस. यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? आयंस की फॉर्म में. NaCl एंड Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. इस तरह से वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा. और भी कंपाउंड है, NaCl लिया मान ले, दूसरा लेते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. तो जितने भी सब्सटेंस लिए हैं दीज सब्सटेंसेज आर आल्सो प्योर सब्सटेंस बट दीज आर नॉट मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मोलिक्यूल्स बट दीज आर मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ आयंस. तो इस केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे आयंस होंगे. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.